It looks like a typical workers' colony in a small town in India. Every morning, mothers hurriedly cook lunch for their families and get their children ready for schools before they head to work. Men put on their boots and ready their bikes to start the day, and dozens of workers in uniforms board a bus to work in a nearby factory. But this isn't just another workers' settlement. Navjeevan Vasahat in Maharashtra's Gadchiroli district is a dedicated rehabilitation colony for surrendered Maoists who now work at a major iron ore company's plant as part of a government program to reintegrate them into mainstream life. From factory jobs, skill training, and state built housing to a return to agriculture, the program has helped hundreds of former Maoists completely rebuild their lives after they lay down their arms. The change in their lives is stark. After years in the dense forests of Gadchiroli, Arpe Pallo now begins her day by cooking meals for her aging parents, making sure their medicines are in place and instructing her daughter to go to school. Not too far away, Neela Kambre also gets ready for work, carrying her young child to the iron ore and pellet factory some 40 kilometers from the Gadchiroli town because the child is too young to leave at home. Both Kamre and Pallo had married Maoist cadres and lost their husbands in the police encounters, and both donned the same uniform and board the same bus daily to their workplace. Work in the Lloyds Metals and Energy Limited iron ore and pellet factory is a world away from their life as left-wing guerrillas roaming in the region's dense forests, rifles slung on their backs as they waged an armed struggle against armed forces for years. As the clock ticked past 2 p.m., Manju Jeevan Tima and Urmila Budharam Lakda work amid the intense heat and noise of a mixing machine and the raw materials being processed. But Tima and Lakda are unfazed. They have no complaints about the heat after their years with the Maoist outfit. Tima and Lakda are among 814 Maoist cadres who have laid down their arms in Gadchiroli district since the Maharashtra government announced its surrender and rehabilitation policy in 2005. ये बताइए पहले कि आपने सरेंडर कब किया था? 2008 में। 2008 में। हाँ। और यहाँ पे नौकरी कब से शुरू किया आपने? 1 बरस हो रही है अभी। 1 बरस। हाँ। कितना पैसा मिलता है आपको? अभी तो 15-16 हजार। 15-16 हजार। 2008 में आपने ज्वाइन किया, 2008 में आपने सरेंडर किया था। ज्वाइन कब किया था? अभी तो 25 में, ये 24 शुरू है। नहीं, यहाँ नहीं, पार्टी कब ज्वाइन किया था? पार्टी में करीबन 90-89 में। करीब 15 साल आप जंगल में रहे थे आप? हाँ सर। तो वो कहाँ आप करते थे काम, क्या काम करते थे वहाँ पे? दिनचर्या कैसा रहता था आपका? मैं बालाघाट जिले में पहले भेजे मुझे, हाँ। वहाँ से गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में, गोंदिया से फिर इधर चामोर्ची बाग में, इधर यहाँ से फिर माड़ में गई, ठीक है, तो आबुज माड़ में। हाँ। वहाँ से फिर 2008 में सरेंडर आई। तो आप भी हथियार लेके चलते थे? आपके हाथ में हथियार रहते थे? हाँ सर। कौन सी गन, कौन सा रहता था आपके साथ? मैं तिरनर तिरी पकड़ती थी, ये सेलर भी चलाने आता, ये सेलर चलाने आता है आपको? हाँ। और अभी यहाँ क्या काम करती हैं आप? अभी ये ग्रेड बाल है ना, ये ग्रेड बाल बदल लेते हैं। अच्छा। और ये पूरा जाप तैयार करने के बाद वहाँ बदल लेते हैं। कहाँ पे? ये वहाँ डालते हैं। तो यहाँ से उठा के? हाँ। यहाँ भी वो रेडी है, वो रेडी है। उस पैलेट जो रेडी है, हाँ, उसको उठा के उसमें डालते हैं? वहाँ डालते हैं, वहाँ के गरम वाले के यहाँ निकालते हैं। अच्छा, ठंडा वाले को डालते हैं, फिर उसको निकाल के इधर को रखते हैं। 16,000 आपने कहा मिलता है। आपके घर में कौन कौन है? कैसी लाइफ चल रही है आपकी? 1 साल से जब से यहाँ काम कर रहे हो, लाइफ में सुधार आया है कि नहीं आया है? नहीं सर, सुधार तो नहीं आया, लेकिन 2 बच्चे हैं और मेरे पति मैं हूँ, तो मैं सोच रही हूँ मेरा बच्चों का भविष्य आगे अच्छा रहना चाहिए और जिंदगी में बदलाव आना चाहिए, क्योंकि अभी लाइफ मिटल में हम लोग आए हैं, अभी प्रभाकरण सर ने है, तो हम लोगों के बारे में सोच रही, तो आगे भी हमारे जिंदगी के बारे में सुधार आना चाहिए और आखिरी तक हम लोगों को साथ देना चाहिए करके मैं उम्मीद रखती हूँ। आपके पति भी थे नक्सली में कि नहीं थे। शादी कब हुई थी आपकी? यहाँ आने के बाद 2008 में।
मतलब सरेंडर के अगले साल शादी हुई है आपकी? हाँ, 9 आपके में। पति क्या करते हैं? अभी रोजी मजदूरी करते हैं। रोजी मजदूरी करते हैं। तो दोनों लोग कमाते हैं आप लोग? बच्चे आपके स्कूल जाते हैं? बस के बच्चे स्कूल जाते हैं। कितने बड़े बड़े बच्चे हैं आपके? ये तो 11वीं में जाएगा, अभी 10वीं पास हुआ। पास हुआ कि नहीं, 10वीं का पेपर दिया है। और एक 8वीं में है। ठीक है। आपकी एज क्या बताई थी आपने? उम्र आपकी क्या बताई थी? मेरा भी होगा 1988 का है। 1988। और आप गढ़चिरौली से ही हैं? हाँ सर। अच्छा, कौन से गांव से? 4 भट्टी गाँव, चार भट्टी, कुरखेड़ा तहसील में आता है। दुड़करा। कुरखेड़ा तहसील। ठीक है। आप बताइए, आप कितने दिन से यहाँ काम कर रही हैं? 1 साल हो गया। 1 साल। अच्छा, 1 साल में क्या आपके लाइफ में चेंज है? आपने सरेंडर कब किया था? कब से यहाँ ज्वाइन कर रही हैं? 2009 में तलंदर के। 2009 में। हाँ, अच्छा, कहाँ कहाँ काम किया था आपने नक्सलियों के साथ? बालाघाट, अपना देवरी डिवीजन और गढ़चिरौली। गढ़चिरौली। हाँ ठीक। और सरेंडर किया 2009 में। शादी कब हुई आपकी? 2009 में ही 9 में शादी। ही हो गई। हाँ सर। आपके पति भी नक्सली में थे? हाँ सर। लेकिन दोनों लोग साथ में सरेंडर किए थे? नहीं नहीं, वो 2008 में था, आया सिलेंडर था। मैं 2009 में, जान पहचान नहीं था। जब दलम में थे आप लोग, जब दलम के साथ थे तब जान पहचान नहीं थी? नहीं नहीं, अच्छा, अलग जब अलग। दलम से अलग हुए तब उसके बाद जान पहचान हुई? जो यहाँ पे आत्मसमर्पण किए, उसका बाद में जो अपने नक्सल सेल वाले हैं, उन लोग ने फिर अभी उस समय में संख्या कम था आत्मसमर्पण मानों का, तब फिर 16 साल का उम्र था तब शादी कर दिया। तब से हम यही है गढ़चिरौली में। तो जब आपने ये नौकरी 1 साल पहले ज्वाइन किया, उससे पहले कैसे घर चलता था? बहुत कठिन जिंदगी था सर। मिस्त्री काम में जाते थे, अभी कभी काम मिलने से जाते थे, नहीं तो फिर खाली पीली रहते थे। बच्चों लोग का देखभाल करना। कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़के हैं, 1 लड़की है 5 साल की। 2 लड़के कमाते हैं? नहीं सर, अभी तो कमाने के लायक नहीं है उन लोग, छोटे छोटे। और हस्बैंड भी खत्म हो गया। किस साल में खत्म? यही साल, यही 6 महीना हो गए सर। आप हाँ अकेले कमा रही है घर में? हाँ, अकेली तो कमा। बच्चे पढ़ते हैं आपके? अभी तो फिलहाल अभी कभी जाते हैं या नहीं जाते हो, तो मैं तो अभी सुबह उठ के यहाँ पे आके, उन लोग जाते हैं नहीं जाते कहाँ मालूम होता सर। आपकी कितनी शिफ्ट रहती है, कितने से कितने बजे की? अभी सुबह हम वहाँ से 7:30 6:30 बजे निकलते हैं, तो शाम को 7 7:30 में घर पहुँचते हैं। पहले जब पार्टी में थी उससे अच्छी जिंदगी है ये? हाँ सर, अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि अभी कम से कम यहाँ दिन भर यहाँ पे रहते हैं परिवार की तरह, और फिर जाते हैं घर के परिवार के साथ में रहते हैं, वो रहते हैं, तो थोड़ा अच्छा ही जिंदगी। अभी थोड़ा पास पैसा भी मिलता और बच्चे लोग का थोड़ा ये भी होता है, इसलिए हमको अच्छा लगता है। और शेयर भी मिला यहाँ से कंपनी से, सामने कुछ अपना परिवार के लिए कुछ तो हो पाएगा ना सर। You call it a irony or whatever you want to say, but this plant in Gadchiroli has offered jobs and opportunities to several families of the Maoists who surrendered their weapons and joined the mainstream. Nearly 80 of them are working at this plant run by Lloyd Metals in Gadchiroli. But what is interesting is their background and where they are coming from in terms of their history with the Maoist movement. Some of them had let down their arms way back in 2014 and worked for odd jobs in the Gadchiroli while it was still to be developed by the authorities. 3-4 years back, they started getting incorporated in this plant, and now they are earning money, monthly salary, provident fund, and they are saying that their lives are changing for the better. A far departure from their lives in the hinterland of the jungles in central India, where they were carrying sophisticated weapons and were led by Maoist leaders. This is our report from Gadchiroli on the rehabilitation and changing lives of the Maoist cadres. Rebuilding their lives isn't easy, but the former insurgents say they are happy with the change. Ramesh Renukatwo, a 33-year-old factory worker, smiles as he parks a crane at the plant. He joined the band outfit in 2003, but his life changed completely after he and his wife surrendered in 2014. For the past 2 years, he has been operating a crane at the Lloyds plant. आपने कब सरेंडर किया था? 2014 को सर। 2014। और यहाँ से कब से काम कर रहे हैं? अभी लगभग 2 साल हो गए यहाँ काम करके। एक चीज बताइए, ये कह रहे हैं यहाँ पे लोग जो मालिक हैं और सब जो लोग कह रहे हैं कि आप लोग को शेयर मिलता है कंपनी में, आपको मिला है अभी तक?
मिला सर, संबर शेयर मिला है, लेकिन उसको कैसे यूज करना उतना हमको जानकारी नहीं है। तो फिर आपको किसने बताया कि आपको शेयर मिला है? तो शेयर का जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट जैसा एक है, वो हमको मिला है, दे कब दिया। मिला वो? अभी हो गया 7-8 महीना हो गया देखे। लेकिन उसको यूज क्या कर रहे हैं, उसका क्या फायदा है वो आपको नहीं पता है? नहीं पता है सर, आपने पूछा किसी से कि क्या फायदा है उसका? पूछा नहीं सर, अभी हम बताएंगे करके बोले हैं। कैसे यूज करना, क्या करना, मेंटेनेंस क्या करना, इसके बारे में हम जानकारी दे देंगे बोले, इसलिए हम कुछ भी उसके बारे में नहीं किए। अभी आप क्या करते हैं यहाँ पे? अभी जो मैं एड्रा ऑपरेटिंग कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो गाड़ी है यही ऑपरेट करते हैं? हाँ, यही। कितने घंटे की शिफ्ट रहती है यहाँ पर? ये 8 घंटे की शिफ्ट आपकी शादी हो गई है? हो गई सर। कब हुई थी? अभी 2011 में हुए थे, जब आप दलम में थे। जलम में थे। तो जो आपकी वाइफ है, जो आपकी पत्नी है, वो भी नक्सली में थी? हाँ, नक्सल में थे। तो कलम में ही शादी हुआ था आपका या बाद में हुआ? नहीं, दलम में ही हुआ था। तो बच्चे हैं आपके? हाँ सर। कितने बड़े बड़े? अभी 9 साल के एक लड़का है, हाँ। 4 साल की एक लड़की है। अच्छा, तो फिर आपकी जो मतलब बच्चे हुए हैं वो जब आप सरेंडर कर दिए दोनों तब हुई है? हाँ, आपकी वाइफ आपके साथ सरेंडर की थी? साथ में थे। तो आपकी भी नसबंदी हुई थी जो नक्सली में करवाते हैं? हाँ सर। तो फिर बच्चे जो हुए तो उसके लिए आपने यहाँ आके गवर्नमेंट ने हमको जो ये एसपी के नुसरनी के एसपी साहब है, उसके जो गवर्नमेंट की तरफ से जो री ऑपरेशन करवा दी। कब हुआ ऑपरेशन आपका? अभी उतना तो मालूम नहीं है सर, अभी कौन सा साल में किए। 9 साल का, लेकिन बड़ा बच्चा है आपका। अच्छा, यहाँ कितना पैसा मिलता है लगभग? 28 28,000। ठीक है। और आपकी वाइफ भी काम करती है? घर में रहती है सर। घर में रहती है, बच्चों को संभालती है। अगर आप 8 घंटे की ड्यूटी करके रोज जाते हो। एक बात बताइए, जैसे आप 12 साल हो गए आपको सरेंडर किए हुए, आप कब ज्वाइन किए थे नक्सली? 2003 में सर। तो आप लगभग उतना ही समय बाहर भी रह चुके हैं, उतना ही समय जंगल में भी रहे हो। कौन सी लाइफ आपको ज्यादा लगी कि आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके परिवार के लिए सही है? जो अभी हम पहले उसमें उतना तो जानकारी नहीं थे, हम नक्सल में गए थे, लेकिन उधर का भविष्य और यहाँ का बहुत अंतर है। क्या अंतर है? मतलब रहना, खाना पीना, अपना जो बाहरी जिंदगी चल रही है उसका बारे में जंगल में कोई आता पता नहीं रहता था। जो यहाँ आके अभी 10-12 साल हुआ तो यहाँ बुरी हमारा लाइफ ही बदल गया है। आप क्या चाहते हो, मतलब आप जो आपके अगला जनरेशन है, आपके बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हो? हाँ सर, जरूर पढ़ाना चाहते हैं सर। आगे का भविष्य हमारा तो जिंदगी ऐसी चली गई, लेकिन आने वाले जिंदगी में बच्चों को भी अच्छा पढ़ा के आगे जाने के लिए सोच रहे हैं। Some of the surrendered cadres also have reasons for working at the plant and for how their lives have changed. कब आप सरेंडर किए थे? 2022 में है। यहाँ क्या काम करते हैं आप? बार बेल्डिंग का। बार बेंडिंग? हाँ, इसको बेंड करते हैं, काटते हैं? बार बेल्डिंग का ट्रेनिंग लिया है, अभी ये कटिंग मशीन में काम कर रहे हैं। अच्छा, तो कितना दिन का ट्रेनिंग हुआ था? 3 महीना का हो गया। 3 महीना ज्वाइन करने के बाद? हाँ। और उसके बाद फिर ये काम में लग गया था। कितना पैसा मिलता है हर महीने? अभी वही 15,000। 15,000। हाँ। घर में और कौन कौन है? बीवी, एक बच्चा है। अच्छा, एक बात बताइए, एक ये होता था ना कि जल जंगल जमीन के लिए आप लोग की रक्षा के लिए लड़ाई हो रही थी, फिर वो भी था कि बड़े कॉर्पोरेट के खिलाफ करना कि वो हमारी जमीन हड़प रहे हैं। आप लोग तो यहाँ काम कर रहे हैं, आप लोग लेबर है यहाँ पर, तो आपको समझ में आ रहा है कुछ कि मतलब वो गलत था, ये गलत था, या जो बड़े कॉर्पोरेट हैं वो अभी भी मतलब जो मजदूर लोग हैं उनके खिलाफ हैं या उनके जमीन के खिलाफ हैं? क्या कितना समझते हैं आप इन चीजों को? नहीं, मतलब वो पहले नक्सलवादी के जुड़ने का एक तरीका था। मतलब पहले कुछ नहीं था हमारा जमाना में। जो मैं उधर गया ना, उस समय हमारे एरिया में ना स्कूल था, ना रोड था, ना कुछ नहीं था। फिर वहां जाने के बाद मैं वहां रहते हुए देखा, हमारा गांव में भी आश्रम खोल गया, वो रोड हो गया, कैंप्स हो गया, ये सब होने के बाद बच्चे लोग पढ़ने लगे। फिर पढ़ने के बाद कुछ लोग नौकरी में भी लग गया, टीचर्स हो गया या कुछ पुलिस में भर्ती हो गए, अलग अलग नौकरी किया। मैं उतना साल काम किया, लेकिन परिवार के लिए तो कुछ नहीं मिला, ना मेरे लिए भी कुछ नहीं मिला। वो जनता का नाम से ही जिया, बस उतना ही। इसीलिए आपने छोड़ दिया पार्टी 22 में? 22 में। अभी आपके सोनू दादा ने भी सरेंडर कर दिया, बाकी सब लोग भी सरेंडर कर दिया, तो आपको क्या लगता है खत्म हो गया सब? मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है खत्म हो गया जैसा ही। अभी तो मेरा हिसाब से अभी तो मैं किसी किसी को जानता हूँ, सब लोग तो आ गए, आंध्रा में गया या इधर आ गया। यहाँ 15,000 कमा रहे हैं आपके घर में, जो आपकी पत्नी है वो भी कमाती हैं?
हाँ, वो भी खमाची है, मतलब वो भी मजूरी के लिए जाते हैं गढ़चिरौली में? गढ़चिरौली में। तो घर चल जाता है आपका। अभी जो आपके हालात हैं उससे आप कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट है सर, बहुत संतुष्ट। और ऐसे मेहनत करने से आने वाले समय में तो बढ़ेगा ही कैसे भी करके। बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं आप? और बहुत। क्या बनाना चाहते हैं? है, मैं तो इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, क्या होगा देखते कितना हैं। बड़ा है बेटा आपका? अभी 4 साल हो गया। 4 साल। छोटा ही है, यहाँ आने के बाद ही फायदा होगा। 4 साल नहीं, 4 साल हो जाएगा। सरेंडर के बाद पैदा हुआ? और 3.5 साल हो गए अभी। तो आपकी जो पत्नी थी वो भी नक्सली थी? हाँ, तो नक्सल साथ ही में सरेंडर किया था आपने? साथ में ही किया सर। तो जान पहचान थी जब दलम में थे तब? दलम में पहचान हो, कोई जान पहचान नहीं? पहले नहीं था। सरेंडर करने के बाद जान पहचान? नहीं नहीं, दलम में जाने। दलम में जान पहचान थी, शादी बाद में करी? हाँ। Gadchiroli Range Deputy Inspector General of Police Ankit Goyal said that the administration had adopted a holistic rehabilitation approach that went beyond cash rewards alone. So, hundreds of surrenders have taken place in Gadchiroli over the last few months. Many of them have been rehabilitated in one form or the other, depending on their timeline of surrender. What do you have to say on the approach of the surrender cadres? Where have they been rehabilitated into? Can you explain some of it? Yeah, see, the approach of both the central government and the state government has always been to rehabilitate these people, and we have always had very attractive rehabilitation and surrender schemes, in the sense that we keep telling them to surrender through radios and through banners and posters. So giving heed to them, and because of the pressure of the security forces, they have now started to come in big number for surrender, and some very senior cadres have surrendered in Gadchiroli. Our approach has been a whole of government approach, a very holistic approach, in the sense that once they come for surrender to us, there are certain cash rewards that they get based on what their rank was in the organization. So cash rewards from the central government, from the state government, but that is only one part of it. The other part is some of them were sterilized when in the Maoist organization. Right. So we do their reverse vasectomy to ensure they have a good family life after that. Yeah. Plus a lot of skill imparting, a lot of training, focus on how they can live a very meaningful life, what can be their profession later. So a lot of trainings happen. We try to provide them houses. So there is a special colony that we have, the government has created in Gadchiroli, where plots are given to them, and through various government schemes, funds are given to them to make houses if they want to stay in Gadchiroli. Yes. A lot of private companies have come forward to give them skill training and jobs. So our approach has been to make sure that their rehabilitation is absolutely complete from all angles. Okay. Not just the cash reward, but to take care of their livelihood from the future perspective. Even beyond also. that. Yes. So one point that I wanted to ask, that there is a company, Lloyd Steel. So there are some 70 or 80 surrendered cadres are working there. What was the rationale behind it? I mean, employment was picked as some main focal point for their rehabilitation. What was the idea behind it? See, like I said, we have a very holistic approach, in the sense that some of them we try to help them for agriculture purposes based on what they need. So in terms of industries, if you look, we have Lloyds as a big industrial player in Gadchiroli. So they had approached us, and people also want to work in a sector where they can, be in their own homes. So they want to stay in Gadchiroli, they want to stay, don't want to go out. So for that purpose, a lot of skill development happened through the company, and the company was happy to take them as employees. So we have facilitated them. Is it a long-term strategy? Like more bunches will come? See, as on today, not many are left to surrender now. You see, the numbers are very. So we are now focusing on whichever the small number is left. We have continuously asked them to surrender, but whoever have come for surrender till now, we are ensuring that we are able to do their complete rehabilitation through whatever means possible. However, not all surrendered cadres live in the rehabilitation colony. The Gadchiroli police have followed a graded way of rehabilitating surrendered Maoist cadres. While hundreds who surrendered years ago have gone back to living their lives and doing their jobs, those who surrendered in the last year are still under police observation. A majority of them live in facilities inside police lines, including some in a 2-story residential building behind the police headquarters in the district. Among them is Nangsu Tumreti, alias Giridhar, the former chief of Gadchiroli Divisional Committee and member of the Dandakaranya Special Zonal Committee.
who had surrendered in June 2024 along with his wife. He has been at the residential complex since April last year, and his routine and daily life are completely different from those of his time as an underground cadre. दिनचर्या कैसा रहता है आपका यहाँ पे? क्या करते हो? सुबह उठे कितने बजे उठते हो? मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, क्योंकि असल में 4 बजे उठते हैं। 4 बजे नल का पानी आता है, तो फिर 5 बजे उठता हूँ, फ्रेश होके 5:30 को बाहर निकलता हूँ वॉकिंग के लिए, रनिंग वॉकिंग। कितने दूर निकलते हो? पुलिस लाइन से बाहर? नहीं, पुलिस लाइन अंदर। हाँ, उसके बाद 6 बजे के बाद फिर कभी पानी लाना है तो नीचे से चढ़ाना भी पड़ता है, या तो फिर नहीं है तो फिर ठीक है, लेकिन चढ़ाते हैं हर दिन। हाँ, 1-2 बकेट। लोग हैं यहाँ पे? हाँ, मेरे बड़े भाई के लड़के हैं एक, वो आपके साथ रहते हैं? मेरे साथ है। वो आपके साथ क्यों? बड़े भाई कहाँ रहते हैं? मेरा बड़े भाई दोनों भी नहीं है, बीमारी से चला गया। अच्छा, तो वो और उसके 2 लड़के हैं, एक चाचा के यहाँ रहता, एक को हमने सर को बता के हमारे साथ रखे जून महीने से, पिछले जून से। हाँ, यहाँ पे स्कूल में डाले अभी। आपके बड़े भाई तो बाहर थे ना, मतलब वो तो अंडरग्राउंड नहीं थे, वो गांव में थे। हाँ, 1 साल से ज़्यादा हो गया। और करीब कितना साल थे आप अंडरग्राउंड? कितने दिन से आप? मैं अंडरग्राउंड 96 में 40 ज्वाइन किया। ये घर किसने दिलाया? कैसे मिला ये? सरकार ने। हाँ, पुलिस ने? पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। आपने एप्लीकेशन डाला था या उन्होंने खुद से? नहीं, खुद से दिए। आगे का क्या सोचा? आगे मैं मेरा इच्छा तो था कि अपने गांव में जाके खेती बाड़ी के थोड़ा सुधार करे। वहाँ पे कोई नहीं है, 10-12 एकड़ है ज़मीन खाली पड़ा है। 12 एकड़ ज़मीन है? हो गांव में अब कोई दूसरे भी लेते नहीं, लेकिन मेरा गांव बहुत दूर है, तो फिर मैं तुरंत जा भी नहीं सकता हमारे गांव में। क्यों ऐसा? क्योंकि सिक्योरिटी का प्रॉब्लम भी है। हाँ, आपको डर है कि वहाँ पे? मुझे तो डर नहीं है, लेकिन प्रशासन भी बोल रहा है कि पुलिस प्रशासन और अधिकारी लोग भी बोल रहे हैं, और बोल नहीं सकते आजकल के ज़माने में। तो आप अभी कुछ काम करते हो यहाँ पे? घर कैसे चलता है? घर कुछ काम नहीं करता मैं यहाँ पे। घर मतलब मेरे जो भी बेनिफिट्स मिले। कितना मिला? मुझे 15 लाख मिले। 15 लाख? हाँ, फिक्स डिपॉजिट? फिक्स डिपॉजिट। उससे महीने का इंटरेस्ट आता है? हाँ, वो भी अभी नहीं किया अभी तक। वैसे बैंक में है, और जो कुछ भी बैंक से ब्याज मिलता है वही है। और मैडम का भी 9 लाख तक मिले हैं। वही पैसा हम सरेंडर सेल के सिग्नेचर से ही हम निकाल रहे हैं, अलग से तो कुछ नहीं निकाल रहे। नहीं, मतलब हाँ, कहना है कि हाँ, वो जो पैसे आपने फिक्स डिपॉजिट करवाए उसी से घर चल रहा है आपका? हाँ, उससे ज़्यादा। हर महीने पुलिस पैसे देती है आपको क्या? नहीं, हर महीने नहीं देती। एक बार जो मिल गया उससे घर चल रहा है? हाँ, उससे घर चल रहा है। Beyond the lives and stories of the surrendered Maoist cadres, there are those who have returned to their native villages and are doing what ordinary villagers in India do: farming. Nowadays, they are occupied with collecting mahua flowers from the field daily. आपने कब सरेंडर किया था? मैंने 2024 से सितंबर को किया था। 24 सितंबर। और गांव कब आई हैं आप? गांव में मैं जनवरी को आई थी, 15 या 16 को जनवरी। हाँ जी, 2026 को। आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मम्मी पापा है, भाई बहन है, सारे हैं। सब लोग हैं। कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम पूरे 6 भाई बहन हैं। 2 भाई हैं और 4 बहनें हैं। आप अकेले थे जो पार्टी में गए थे या और लोग भी गए? जी, मैं अकेली थी। कौन से साल में गए थे आप? मैं 2007 में गई थी। क्या अलग थी पहले और अभी क्या है? अभी भी मतलब बदली नहीं है कुछ भी। ऐसी है। पढ़ाई मैं 5वीं पढ़ रही थी वहाँ पे मुरुम गांव में। वहाँ से फिर 7वीं में गई। मेरा स्कूल छुड़ा दिया, फिर गांव में गाय भैंस चराने के लिए रखा घर वालों ने। हाँ जी। तो फिर उस दौरान फिर हमारे गांव में पार्टी बहुत आना जाना ज़्यादा थी, तो गांव में बहुत ज़्यादा आते थे, दोस्ती भी करते थे। हाँ जी, गुरे कसा गाँव में। तो फिर उनके साथ बहुत अच्छा लगता था।
घर में जैसा बर्डन में रहते थे उस तरह से उनके साथ नहीं रहते थे। वहाँ क्या काम करते थे आप? कोई भी काम नहीं करती थी जब मैं शुरुआत में गई, बस ऐसी रही मैं बचपन जी वहाँ पे, मुझे लगता है। अच्छा, फिर जी। धीरे धीरे मतलब फिर हाँ, जब जैसे मैं बड़ी होती गई फिर काम भी करना शुरू किया जैसे बाकी सारे करते हैं। जैसे हाँ, जैसे कि संतरी करना, वहाँ पे ड्यूटीज लगती है अलग अलग जो सबको करने पड़ते हैं। आपने क्या-क्या ड्यूटी की वहाँ पे? मैंने रूटीन रोज की जो ड्यूटी होते हैं वहाँ की किचन डेली की रूटीन ड्यूटी, बताइए, डेली जब आप रूटीन पार्टी में थे तो। ये रहता है कि भाई घूमना होता है गांव गांव। जैसे सुबह 5 बजे उठ लिया, एक्सरसाइज कर ली, फिर 7-8 बजे नाश्ता होता था। उसके बाद फिर ज़्यादातर अनपढ़ होते हैं तो उनकी पढ़ाई प्राथमिक रूप से की जाती है वहाँ पे, तो 2-2.5 घंटे पढ़ाई होती है, तो वो रहता था। फिर उसके बाद 12 बजे खाने की विसल बजती थी, फिर हम खाना खाते थे, फिर 1-1.5 घंटे की रेस्ट होती थी। फिर उसके बाद फिर 2 से 4 बजे तक पॉलिटिकल पढ़ाई करते थे दोपहर में? जी। तो ये जब एक जगह पे बेस पे जी, रहते थे, एक जब जगह आप पे मूव करते थे तब? मूव करते वक्त को कोई मतलब पढ़ाई कुछ नहीं होता था, सिर्फ चलना होता था, हथियार और खाना उसमें पीना। क्या अंतर है? मतलब सबको हथियार रखना होता था जैसे जी। आपको हथियार रखना था? शुरुआत में नहीं था क्योंकि मेरा एज नहीं था ना, जी। तो फिर मेरे पास कोई हथियार नहीं था। फिर किस साल में आपके हाथ में हथियार आया? आपको मेरे ध्यान है? पास 2011 में आई थी। 11 में आया। जी कौन कौन से हथियार चलाने जानती हैं आप? जी, मैं पार्टी में जितने हैं सब भी जानती हूँ। AK-47, जी। AK-56, सब। 56 था पार्टी में? था, 56 भी था। जी। कार्बाइन कार्बाइन था, सब M4 नहीं होगा, नहीं M4। नहीं, M5 था। ठीक है। अभी जब आप जनवरी में यहाँ से आई, आप क्या करती हैं? अभी तो मैं कुछ नहीं भी कर रही हूँ यहाँ पे घर में, बस ये घर वाले जो करते हैं उनकी मदद करती हूँ थोड़ा बहुत बस। अच्छा, तो ये जो महुआ मतलब आप लोग चुनते हो, ये आप घर वाले आपके चुनते जी, हैं इसे? जी। तो इससे घर चल जाता है आपका? नहीं चलता जी, ये एक सीजन है, अभी 10-15 दिन ये आएंगे, उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद फिर क्या होगा, कैसे होगा? कुछ नहीं करते, फिर अभी बांस कटाई करते हैं थोड़ा बहुत, उससे कुछ पैसा आता है, फिर उससे घर चलता है। तो आप जनवरी में अभी आई तो आपको जॉब ऑफर हुआ था वहाँ पे? नहीं, लाइट स्टील में? वहाँ पे बोला था भेजेंगे, एक टीम तैयार की गई थी, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं है। अच्छा, ठीक है। ये कब बोला था कि? ये हमें जैसे ही मैं आई 6-7 महीने हुए थे, उसके बाद ही बोलना शुरू किया था, लेकिन अब तक नहीं हुआ है। अच्छा, और मतलब बाकी जो घर है आपका, कि घर का जो सिस्टम है, मतलब सब लोग यही काम करते हैं? सब लोग खेती करते हैं? खेती कोई करते हैं, नौकरी, सिर्फ किसी ने पढ़ाई करी है? नहीं, कोई भी नहीं किया पढ़ाई, बस यहाँ पे सिर्फ खेती करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे गांव बहुत पिछड़ा हुआ है ना, तो फिर 10th के बाद कोई आगे पढ़ने के बारे में सोचता अभी नहीं है। स्कूल है गांव में? हाँ जी, 4th तक है, उसके तो बाद फिर मुरुमगांव जाते हैं। मुरुमगांव में हाई स्कूल है अभी? 7वीं-12वीं तक है वहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे आगे पढ़ने के लिए भी सोचते हैं, लेकिन कास्ट वगैरह बनानी है ज़्यादातर लोगों का गांव में, तो फिर आगे पढ़ाई नहीं होती है। तो अभी भी? हाँ जी, अभी भी ऐसे ही है। तो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है हमारा गांव, जैसे हम छोड़ के गए थे वैसे ही है। अभी भी? हाँ जी। आपको लगता है कि अगर हालात वैसे ही रहे तो फिर दिक्कत होगी? मतलब गांव में स्कूल बनने चाहिए और आगे तक? हाँ, बनने चाहिए, विकास तो होना चाहिए। अभी जैसे नक्सलवाद यहाँ पे था तो ऐसा लगता था कि ये रुका हुआ है, पर अभी तो खत्म हुआ है, तो विकास तो होना चाहिए गांव तो का। नक्सलवाद की वजह से विकास रुका हुआ था? हाँ, बोलते तो यही है ज़्यादातर। आपका क्या कहना है? मुझे तो लगता नहीं है, सरकार को मतलब आना चाहिए गांव तक, विकास होना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। जैसे हमने पता भी थोड़ा बहुत पढ़ा भी है कि भाई मतलब करोड़ों रुपए है ऐसे पंचायत की तरफ से खर्च हुए हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ हुए हैं। गांव तो बहुत पिछड़ा हुआ है। हाँ जी। पार्टी के लिए आप क्या काम कर देती? मैं प्रेस का काम कर रही थी, वहाँ पे मैगजीन्स छापते थे हम लोग। क्या छापते थे मैगजीन? नाम जन संग्राम मैगजीन था, उड़ीसा का। हाँ। पहले यहाँ पे प्रभात में मेरे हस्बैंड काम करते थे, तो वहाँ से फिर हम उड़ीसा में चले गए और वहाँ पे जन संग्राम मैगजीन शुरू किया आप था। और आपके हस्बैंड? जी। शादी कब हुई थी आपकी? शादी हमारी 2013 में हुई थी। बच्चे हैं आपके? नहीं जी। और अभी कहाँ हैं हस्बैंड आपके? अभी मेरे हस्बैंड चंडीगढ़ में हैं। दोनों ने साथ में सरेंडर किया था आप लोगों ने? जी, हमने साथ में सरेंडर किया था। वो आपके साथ ही रहते हैं? जी। और अभी चंडीगढ़ हैं? अभी चंडीगढ़ में हैं। तो किस चीज़ की प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं अभी? अभी तो नॉर्मल जैसे बुक्स है, लिखते हैं, जैसे भाषा पे लिखा, हिस्ट्री पे लिखा। अभी आप लिख रहे हो? जी, नॉर्मल लिखते हैं। हाँ।
किस चीज़ की हिस्ट्री? अभी भाषा की हिस्ट्री। और अभी वहाँ पे थे ना हम हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल की हिस्ट्री पे काम कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश में कब थे आप? जी 2018 में गए थे, हम वहीं पे रह रहे थे। फिर वहाँ से मतलब पार्टी की तरफ से? जी पार्टी की तरफ से नहीं गए थे, हाँ। पार्टी को छोड़ दिया था हमने। 18 में ही आपने छोड़ दिया जी था? छोड़ दिया था। तो फिर हिमाचल प्रदेश जाके रह रहे थे, वहाँ पे 6-7 साल रहे वहाँ पे। अच्छा, पार्टी छोड़ के आप और जी। हस्बैंड दोनों? जी तो तो हिमाचल प्रदेश क्यों? बस वहाँ पे कोई पार्टी का कोई कामकाज नहीं था, हमें सिक्योर रहना तो था। आप निकल के आए कैसे पार्टी से बता के आए हम कि हम जा रहे हैं? जी, हमें काम नहीं और जाने करना दिया है आपको? जी। 6-7 महीने रखे, बातचीत चलती रही आपस में कि भाई मत जाओ तुम लोग, बचपन में आए हो कि और तुम्हारा मतलब पॉलिटिकल करियर खत्म हो 2018 जाएगा। हाँ, अच्छा पॉलिटिकल करियर। हाँ 2018 में तो कहाँ थे इसलिए जब आप जा रहे थे? तो उड़ीसा में उड़ीसा, जी, नुआगढ़। नुआपाड़ा। किताब की बात कर रही थी आप, क्या क्या लिख रही हैं अभी आप लोग? आप और पति अभी- दोनों लिखते हैं आप लोग? जी मैं तो बहुत कम लिखती हूँ। अभी मैंने एक ही किताब लिखी है, क्या नाम है? आदिवासी विद्रोह करके। छप गई है वो? जी किसने छापी? ऑनलाइन है, हमने खुद छापी थी। अच्छा ऑनलाइन भी है, अभी फ्लिपकार्ट अमेजोन पे है। अच्छा, जी क्या लिखा है आपने उसमें? उसमें हिस्ट्री है आदिवासी विद्रोह, अच्छा, आदिवासियों के जो। ये कौन से साल में छपी? ये 22 में छपी है। 22 में। और फिर तो फिर आप सरेंडर क्यों की यहाँ आकर के? मैं तो समझ नहीं सरेंडर आया। जब आप पहले इसलिए, चले गए थे। हाँ सरेंडर इसलिए किया था क्योंकि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे, आधार कार्ड surrender वगैरह नहीं था, कुछ भी नहीं था। और अरेस्टिंग का खतरा लग रहा था हमें, कभी भी कोई पकड़- कभी भी कोई भी पकड़ सकता है। फिर कब डिसाइड किया आपने कि आप अरेस्ट? हमें लगभग 1 साल से लग रहा था, 23 से ही लग रहा था कि भाई हमें, क्योंकि हम काम कर रहे थे पब्लिकेशन का, मैं ट्रांसलेशन का करती थी, ग्राफिक डिजाइनिंग हम करते थे, क्योंकि हमें वो आपने सीखा कहाँ है ग्राफिक? वहीं सीखा था पार्टी में? जी। कैसे, इंटरनेट से? हाँ जी, लैपटॉप वगैरह चलाना वहीं से सीखा था। आपको सब आता है सारा, हाँ ग्राफिक जी। डिजाइनिंग और ये सब? हाँ While the fear of a looming arrest drove Anju and her husband to surrender, former Maoist cadre Sandeep Sahangu Tulavi, known as Vikram, had a totally different history with the band outfit. आप कब सरेंडर किए थे? मैं 2025 जनवरी महीने में। 1 साल पहले लगभग? हाँ 1 साल आपकी वाइफ हैं, उन्होंने कब सरेंडर किया? एक साथ। क्या नाम है उनका? वसंती तुलावी। तो अभी आप लोग, महुआ का सीजन है तो महुआ चुन रहे थे आप? हाँ 7 बजे से आप लोग चुन रहे हैं, अभी करीब मतलब 12 बज गया है। 12 बज गए। 5 घंटे रोज ऐसे हाँ, ऐसे ही रोज रूटीन हाँ, रहता है, ऐसे जैसे ही आज रोज हमने के- देखा वैसा ही रोज रूटीन है आपका? हाँ रोज सुबह से 11-12 बजे तक हम वहाँ बेनते हैं। बाद में वहाँ ख़त्म होने के बाद और दूसरा काम जैसे? में जाते हैं, जैसे कि जंगल का कुछ काम हो, जो लकड़ी पाटा ये हो, और बाहर गांव घूमना हो, ऐसे वैसे सब सारा काम कर लेते हैं। जब महुआ का सीजन खत्म हो जाता है तब आप क्या करते हैं? अभी फिर कैसे? अब मुहा के पहले हम बांस काटे और 10-15 दिन वो चला। उसके कितने बाद बांस काटे आपने लगभग? मैं लगभग अभी 20 टुकड़े वाला जो एक बंडल बनता है, तो इसे 75-100 तक काट दिया। और वो कितने में बिकता है वो? अभी एक बंडल 110 रुपये में। उसमें एक बंडल में कितना रहता है? 20 टुकड़े। 20, तो मतलब 5 रुपये एक का। हाँ हाँ। तो ऐसे आपने 100 किए? 100 एक दिन में? नहीं, वो 7-8 दिन में। 7-8 दिन? हाँ एक दिन में तो 20-25 तक हो जाता है। तो और उसके अलावा घर चलता कैसे है? खेती होती है? हाँ खेती से ही घर चलता है। कितनी जमीन होगी आपके? अभी 6-7 एकड़ है। उसमें क्या क्या उगाते हैं आप लोग? अभी धान और दाल भी हर प्रकार के, जैसे कि मूंग, उड़ीद, ऐसे। अच्छा, आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम 3 भाई हैं और 3 बहन हैं, ऐसे 6 जन। और बाकी भाई लोग आपके साथ ही रहते हैं? नहीं, बड़ा तो अलग है। हाँ। छोटा मेरे साथ। वो गांव में ही रहते हैं? हाँ गांव। सब लोग? पिताजी और माताजी आपके? माताजी तो है, पिताजी गुजर गए। कौन से साल में? 2013। तो आप पार्टी में थे? हाँ। आपकी इतनी जमीन है, ठीक ठाक जमीन है, जब भी आप कह रहे हैं ठीक है, तो हाँ। मतलब फिर कैसे पार्टी से जुड़ गए आप? कौन से साल में जुड़े थे? नहीं, होते एक मजबूरी होती है कि पार्टी में जुड़ना। क्या मजबूरी? और पार्टी वाले भी हमेशा आते जाते रहते थे, तो उनसे कुछ आकर्षित करने के लिए कुछ उनका प्रोग्राम्स रहते हैं, जैसे कि नाच गाने और
खेल कूद ही हो करते थे गांव में आके। हाँ, आपने कब ज्वाइन किया था? मैं 2004 में ज्वाइन किया। क्या मजबूरी कह रहे थे आप? मेरे तो अभी कुछ पार्टी ज्वाइन करने के पहले मैं जेल भी गया था। कितने दिनों के लिए? 3 साल के लिए 3 था। साल? कि क्या ढाई बोला 3 साल। क्या बोला पुलिस ने? क्यों अरेस्ट किया था? क्यों पकड़ा ऐसे ही कि कुछ संशय से अरेस्ट किए और किस चीज का संशय? जो माओवादियों के लिए अनाज वो अनाज देते हैं, ये वो करते हैं, ऐसे मदद ये करते 2001 हैं। में? हाँ हाँ अच्छा, तो फिर छूटे कैसे आप? हाँ, तो केस फाइनल किए। हाँ। जो बोर्ड में दिए केस, हाँ। उससे फैसला हो गया कि ये बेकसूर है। उसके बाद गाँव 2.5 साल तक आप जेल में थे? हाँ हाँ उसके बाद छोड़ दिया आपको? जी। फिर आपने ज्वाइन ही कर ली पार्टी? नहीं, उसके बाद तो और हम घर में आके शादी किए। हाँ। शादी किए उसके बाद में हम ज्वाइन किए। अच्छा, तो ज्वाइन करने से पहले क्या था? ये गांव 2004 में और अभी 2026 में जब आप वापस आए, कभी हाँ। जनवरी में वापस आया, हाँ, तो 20 साल में कितना बदला कि वैसा ही है गांव? हाँ, गांव का तो कुछ बदलाव नहीं है, वैसा का वैसा ही है। एकदम वैसा ही है? हाँ, और पहले जैसा था उससे भी अभी बदतर हो गई। अच्छा, कैसे? हाँ। मतलब अभी गांव में जो विकास होना था वो अभी तक नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो इससे पहले अभी जो नल जल योजना है वो अभी आधे गांव को मिल जाता है, आधे गांव को नहीं मिलता। ऐसे कई अनेक ऐसी समस्या है गांव का। जैसे और बताइए, ये क्या समस्या है? अभी जो नाली है, रोड है, ये कुछ नहीं बना अभी तक। अच्छा, नाली रोड सब एकदम नज़ारा देगा। नजारा। ये जो रोड बन के आई है गढ़चिरौली से, हाँ ये था पहले? हाँ, ये तो 2001 से ही बने हैं। अच्छा, कुछ नया नहीं है? नया नहीं। जो जैसा था एकदम वैसा ही है। Much like their daily routines while they were part of the Maoist outfit in the region, the daily lives of the Maoist cadres who surrendered and living in Gadchiroli start very early in the morning. They wake up, they get ready and they prepare to go out and work. But the area of work from where they are earning their livelihood have completely shifted. Some of them are lifting heavy metals in the nearby factory, while some of them are crane operators. Hundreds of them are still under the observation of the district police, while the security officials are saying that it is important to have them secure because there are serious security threat against them if they are exposed and given to go outside and go back to their home. Some of them have also returned to their native places and fallen back on agriculture for their livelihood. But there are some improvements that are required in terms of governance. The basic facilities in these villages are still lacking. The roads and the last mile connectivity to these villages need further improvement. While the Union Home Minister Amit Shah has declared that the armed faction of the Maoist party has completely been disbanded, the governance issues as well as the basic facilities in these villages will decide how far the India's fight against the left-wing extremism has come so far over the last few decades. With video journalist Suraj Singh based in Gadchiroli, this is Mayank for The Print.